নমস্কাৰ কথনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি হৈছে শ্ৰী অজিত কুমাৰ জা। অজিত জা তেখেত আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে তেখেত আম আদমি পাৰ্টিৰ এজন ফাউণ্ডাৰ আছিলে আৰু এতিয়া তেখেত তাৰপিছত তেখেত স্বৰাজ ইণ্ডিয়াৰ উইথ অলছো স্বৰাজ ইণ্ডিয়া স্বৰাজ ইণ্ডিয়া আৰু এতিয়া তেখেত ভাৰত জোড়ো অভিযানৰ নেশ্যনেল যিটো কমিটি আছে তাৰ এজন সচিব সম্পাদক। So I welcome you to our show today and I'm very happy that you could come here, you could manage time for this small interview and initially, my first question is that how do you see the present political scenario in the country after the Lok Sabha elections? क्या है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? लोकसभा इलेक्शन का नतीजा कुल मिला के पॉजिटिव। वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एक जो माहौल बन रहा था कि जो मोदी सरकार को जो वोट मिलता है इसका मतलब है कि सब लोग कॉमनल हो गए हैं और सब लोग कॉमनल होकर के वोट दे रहे हैं। तो ये जो चुनाव का नतीजा आया इसमें ये तो साफ हो गया कि दूसरे इशूज़, लोगों की परेशानी, लोगों की चिंता, ये इसका महत्व है। और एक डेमोक्रेसी में वोट के समय लोग अपने तकलीफ़ का इजहार करते हैं। उस मायने में ये रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है। पर जो चैलेंज है, जो चुनौती है वो ये है कि लोग तो बड़े पैमाने पर परेशान भी हैं और मोदी सरकार को हटाना भी चाहते हैं, लेकिन जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उनको अपने संगठन के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में जिस किस्म का परिवर्तन करना चाहिए वो करते हुए अभी तक दिख नहीं रहे हैं। कर रहे हैं कुछ परिवर्तन, पर जितना लोगों की ज़रूरत है और लोगों का मन है उसके हिसाब से वो परिवर्तन अभी भी नाकाफ़ी है। इसलिए जहाँ बीजेपी को 200 से ज़्यादा सीटें मिली है वहाँ नंबर 2 पार्टी को लगभग 100 के बराबर सीटें मिली है। तो जो लोगों का अपना मन है और जो पॉलिटिक्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें बहुत मिसमैच है। और इस सत्ता को ठीक करने के लिए, सत्ता का संतुलन ठीक करने के लिए इस चुनाव में जो टॉनिक जनता ने दिया है अपोजिशन पार्टी को, अपनी मेहनत से लोगों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपोजिशन को बहुत ताकतवर बनाया है। अब ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि इस ताकत का इस्तेमाल करके वो अपने आप को सुधारे और अपने आप को चेंज करे जिससे इस चुनौती का मुकाबला कर सके। मतलब पहले तो ये हो गया पूरा भारत एक कम्युनल नहीं हुआ। The entire India has not turned communal. That's number one. और दो ये है जो जब ऐसे माहौल बन रहा था, that means BJP was also in such a high moral ground that this time also they will come to power with absolute majority. 400 par. That was their slogan. So that didn't happen. That didn't happen. So that means people are not communalized as they wanted to present them, and then people are actually
disturbed by their own problems and their livelihood problems, unemployment, and there are many plethora of problems actually, and all those things became issues in the Lok Sabha. But then you have said, very importantly, you have said one thing that okay, the grievances of the people are there, the ground reality is there, and that is why people have voted against the Modi, though Modi has come to power with the support of, say, Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. But then opposition political parties, they are not yet equipped, properly to take these challenges, and to fight against Modi. But this sensing trend, do you think that this after this election, after the Lok Sabha elections, the opposition political parties, what do you think that what should be their motto now? What should they be doing at the moment to prepare themselves well for the next, you see, for the elections in one state? Of course, we have seen Haryana what happened, and there is elections in another two states. One is Maharashtra, it's a very, very important state, and another is Jharkhand. So, what? But then first of that, but before going to that, I just want to know from you, what happened in Haryana, because everybody was telling, even Yogendra Jadhav was telling that okay, so this Congress will definitely come to the power, and but then finally what happened? And you are being actually based in Delhi, and you have been observing this Haryana situation very closely. So what is your reading of the situation? जो हरियाणा में हुआ वो जो आपका जनरल सवाल है कि अपोजिशन इस लोकसभा चुनाव के बाद कैसे खुद को ताकतवर बनाए और लोगों के जो तकलीफ़ है, महंगाई का है, बेरोज़गारी का है, वो कैसे पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण बने, उस जनरल सवाल से जुड़ा हुआ है ये सवाल। देखिए, एक तो हरियाणा में ये समझ लेना चाहिए कि लोकसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस का वोट लगभग बराबर था। आधा हुआ था ना, इन टर्म्स ऑफ सीट वोट में कांग्रेस का 1% ज़्यादा था, और असेंबली में कांग्रेस का 0.5% कम है, सिर्फ 0.5% बीजेपी से। ये तो, मतलब, और आम आदमी का कितना था? वो उसमें 1% जो ज़्यादा था उसमें आम आदमी पार्टी का मिला हुआ था। हाँ, अभी जो 0.5% कम हुआ है इसमें आम आदमी पार्टी का नहीं है, पर आम आदमी पार्टी का अपना वोट बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसलिए उसको उन लोग क्या कोई फैक्टर बना उधर? वो कोई फैक्टर नहीं, वो कोई फैक्टर नहीं। जो फैक्टर बना हरियाणा में वो यही बना कि अपोजिशन ने लोकसभा चुनाव में जो 400 पार नहीं हुआ, जब 400 पार की उम्मीद थी और 150 सीट कम हो गया, तो अपोजिशन का जो कमजोरी है वो ये है कि वो एजम्पशंस पे बहुत काम करते हैं। तो जब 400 पार नहीं हुआ, हरियाणा में 5-5 हो गया, तो उनका ये एजम्पशन बन गया, उनकी ये समझ बन गई कि ये चुनाव हम जीत गए हैं। ऐसे मतलब they became very complacent, वेरी कंप्लेसेंट। हम लोग जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया वही नारा उसको बुमरैंग कर गया। अगर 400 पार नहीं बोला होता तो हो सकता है 5-10 सीट और मिलता। पर 400 पार बोलने से शोर शराबा तो बहुत हो गया, काम कुछ नहीं, काम कम हो गया। वैसे ही हरियाणा में
मतलब इतना कि अब जब लोकसभा में 5-5 हो गया तो अब तो विधानसभा में तो कोई सवाल ही नहीं है, हम जीत गए हैं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आप वोटर को कभी भी ये दिखेगा कि आप ये कह रहे हैं कि आप जीतेंगे ही, आप इलेक्शन में जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं और प्रचार ये कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। वोटर बोलेगा वो अलग बात है, पार्टी खुद बोलेगा कि हम जीतेंगे ही, ये वोटर को पसंद नहीं है। तो वोट का डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस का ज़्यादा नहीं है, 0.5% का डिफरेंस है, पर कांग्रेस को कम से कम 5-6% ज़्यादा वोट आना चाहिए था। वो नहीं कर पाया। वो नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि कांग्रेस ने एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट में, एक डेमोक्रेटिक ह्यूमिलिटी के साथ वोटर को अप्रोच नहीं किया और वो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसमें लगा और कौन मिनिस्टर बनेगा, ये इसकी चर्चा लोग आपस में कर रहे थे। ये बहुत बड़ा कारण हुआ। ये मतलब इसका मतलब ये निकला, मतलब इट्स ए ग्रेट लर्निंग ना, इट्स ग्रेट लर्निंग फ्रॉम हरियाणा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन वाज ए ग्रेट लर्निंग, हरियाणा इलेक्शन इज आल्सो ग्रेट। लोकसभा इलेक्शन का मतलब जो पॉजिटिव लर्निंग, और हरियाणा इलेक्शन से नेगेटिव लर्निंग। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में खास तौर पर इलेक्शन में आप वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप उसको ह्यूमिलिटी से अप्रोच करेंगे, अपने पार्टी कार्डर को भी ह्यूमिलिटी से अप्रोच करेंगे। जब आप जीतने के उसमें होते हैं तो पार्टी वॉलंटियर्स का, वर्कर्स का इम्पोर्टेंस बहुत कम हो जाता है कि हम तो जीतने ही वाले हैं। तो आपको टिकट सिलेक्शन से लेकर के, सोशल कोएलिशन से लेकर के, वोटर का रिस्पेक्ट करना और अपने वॉलंटियर्स का, पार्टी मेंबर्स का रिस्पेक्ट करना, अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आप ये नहीं करेंगे, आप इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले कहेंगे कि हम जीत गए हैं, तो वो इलेक्शन आप जीत नहीं सकते। I think this is something very, very important, and people who are watching this interview, I think there is a great learning in it, even for the people in Assam, and particularly the opposition political parties in Assam who are actually fighting among themselves now for these elections, coming by-elections, assembly by-elections in few constituencies. I think you have said something, it's a golden words, that you cannot take the voters for granted, and you have to approach them with humility. And then maybe you have to, in each and every step, as BJP does, you have to prepare yourself for winning the election. You have to prepare yourself completely, fully, and you cannot leave it to the euphoria, the media euphoria that you are going to win the elections. I think this a great lesson, great reading, I must say, as to the debacle Congress faced. I shouldn't call it a debacle, but then the defeat they faced in Haryana. Now, so what do you think that how the opposition, what is the situation, what is the scenario so far this, before we go to some other questions now, how do you see the scenario अभी जो राजस्थान में जो माहौल बन रहा है और जो झारखंड में जो हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या सोच है, आप कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र और झारखंड, हाँ, महाराष्ट्र दो जगह अभी इलेक्शन होना है। इलेक्शन हो रहा है अभी। इसमें झारखंड में इंडिया अलायंस का कोalition गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में एनडीए का कोalition गवर्नमेंट है। तो इन दोनों जगहों पे लोकसभा और हरियाणा इलेक्शन के बाद बीजेपी भी और इंडिया अलायंस भी इलेक्शन के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बीजेपी के लिए लोकसभा का लर्निंग है और इंडिया अलायंस के लिए हरियाणा का लर्निंग है।
दोनों जगह महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी कोalition ने काफ़ी स्मूथली ज़्यादातर सीटों पे एडजस्टमेंट कर लिया है। झारखंड में नियर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब वो लेफ्ट और आरजेडी को कौन सा सीट देंगे ये डिसाइड होना है, वो कुछ दिन में डिसाइड हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट सभी सीटों पर एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। कुछ सीटों का बचा है, वो भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन अच्छा है। जो प्रॉब्लम है फ्रॉम अपोजिशन साइड, प्रॉब्लम एनडीए साइड से भी बहुत सारा है, पर एनडीए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है हर जगह, और हर जगह वो नॉन इश्यूज़ को, जैसे झारखंड में सडनली अचानक से वो खुद 5 साल पहले सरकार में थे, उस समय इस इशू को कभी उन्होंने रेज नहीं किया। 5 साल से इंडिया अलायंस की सरकार है। इंडिया अलायंस तो पहले नहीं था, लेकिन जो इंडिया अलायंस के कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी सरकार है, वो इस इशू को उन्होंने रेज नहीं किया। पर अभी 3 महीने 4 महीने पहले से वो एक बांग्लादेशी, ये तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर भी उधर जाके, वहाँ जाके बांग्लादेशी आ गए हैं। वो आदिवासी लोगों की संख्या, आदिवासी लोग झारखंड में 30 साल 40 साल 50 साल पहले मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं ऑलरेडी। झारखंड में आदिवासी पॉपुलेशन 1/3 से ज़्यादा पिछले 40 साल से नहीं है। और वो लोग कौन है? वो लोग वही है जो इंडस्ट्री बना, तो जनरल माइग्रेशन है। यूपी से और बिहार से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है। 100-150 साल पहले भी बिहार से कोई बांग्लादेशी का सवाल नहीं है, वो पहले से माइनॉरिटी में, पर उनको कह रहे हैं अब आप माइनॉरिटी हो जाओगे क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं। सडनली एक सवाल लेकर के कोई कहीं पर 2 ग्रुप में कोई 2 क्राइम होगा, कुछ रूटीन क्राइम होगा, तो उसको इमीडिएटली एक कॉमनल पोलराइजेशन का सवाल बना रहे हैं। तो ये एक लेवल पर डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी दिखा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का जो वेलफेयर मेजर है उसका रिसेप्शन काफ़ी पॉजिटिव है, और हेमंत सोरेन का जो गिरफ्तारी हुआ उसका भी रिएक्शन काफ़ी है। लेकिन वहाँ भी जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन में, उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बहुत पहले समय से गांव में बसे हुए लोग हैं झारखंड के बाहर के, ख़ास तौर पे कुर्मी महतो लोग हैं जो 100 साल 200 साल पहले से झारखंड में रह रहे हैं, खेती करते हैं, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का अच्छा पकड़ है। लेकिन शहरों में, शहरी आबादी में, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का उतना पकड़ नहीं है। वो जिम्मेदारी कांग्रेस का, लेफ्ट पार्टीज़ का, आरजेडी का है। तो ये उसको कितना अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, इस पे इंडिया अलायंस का वो डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे जनरली एक एंटी इनकम्बेंसी करके और एक कोई ओवरवेलमिंग एक तरफ इलेक्शन जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्शन इज इवनली बैलेंस्ड। उसमें जेएमएम के फेवर में उनका वेलफेयर मेजर जो है वो उनके फेवर में है। जो अगेंस्ट में जाएगा वो जाएगा। 5 साल से उनका सरकार है और आजकल एस्पिरेशंस लोगों के बहुत ज़्यादा है, और वो एस्पिरेशंस के बारे में लोग एवेल्युएट करेंगे, तो वो एक फैक्टर होगा। भाजपा जो इशूज़ को, पोलराइजेशन को इशू बना रहे हैं, वो इशू नहीं बन पाएगा, वो नहीं इशू नहीं बना। और महाराष्ट्र में एडवांटेज बहुत बड़ा है इंडिया अलायंस को। उस एडवांटेज को कैंसिल करना ये एनडीए के लिए आसान नहीं है। हरियाणा में क्या था कि वो लगभग बराबर थे, पर यहाँ पर जो गैप है ये वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ 5-5 सीट था, यहाँ 48 में उनके पास 30 सीट है
इंडिया अलायंस के पास। तो वो गैप बहुत ज़्यादा है, उस गैप को भरना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। इतना आसान But then they have to work very hard. Yeah, So yeah, India बिल्कुल। Alliance have to work very hard. बिल्कुल, बिल्कुल। As you have said, so far the Haryana is concerned, तो जी। मतलब ह्यूमिलिटी के साथ काम करना जी, है। जी, जी। भूतार को मतलब कोई respect एक भी फॉल्स स्टेप नहीं लेना चाहिए। नहीं, एक भी फॉल्स स्टेप एंड इलेक्शन इज गॉन। वेरी गुड सजेशन एक्चुअली। अभी आपका फ्लाइट भी कैच करना है, तो ये मेरा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। मतलब आपने you were involved in various socialist groups, you were involved in various movements, तो फिर आप आम आदमी का साथ, मतलब आम आदमी किया आप लोग ने, अभी उसका बाद स्वराज इंडिया, and now you have kept the Swaraj India activities in abeyance and fully devoted to this भारत जोड़ो अभियान। तो अभी भारत जोड़ो अभियान, जो भारत जोड़ो अभियान का जो मतलब जो अभी का जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप। कि भारत जोड़ो अभियान का आप जानते हैं कि अभी एनुअल कन्वेंशन हुआ सेवाग्राम में, जहां देश भर के लोग आए थे। तो वहां हमने भारत जोड़ो अभियान का आगे के प्रोग्राम के बारे में प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव का 3 हिस्सा है। एक तो चुनावी हिस्सा है। तो चुनावी हिस्से के तौर पे तो हमने ये तय किया है कि भारत जोड़ो अभियान में जो भी साथी हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जैसे स्वराज इंडिया पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो चुनाव के लिए तो हम लोकसभा और विधानसभा में जो इंडिया अलायंस की पार्टीज है उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके साथ संवाद भी करेंगे और उनके लिए काम भी करेंगे। लेकिन भारत जोड़ो अभियान का ये भी मानना है कि इस वक्त जो चैलेंज है इंडियन पॉलिटिक्स का, वो ये नहीं है कि इलेक्शन में कौन जीतता है कौन हारता है। ये एक चैलेंज है, क्योंकि जो एक नेशनल कंसेंसस इस देश में 150-200 साल में बना, आज़ादी के आंदोलन से बना, वो नेशनल कंसेंसस को से बीजेपी ने अपने आप को बाहर कर लिया है। बीजेपी ने सभी धर्मों को मानने वाले लोग, सभी संस्कृति को मानने वाले लोगों का ये देश बराबर का देश है, ये जो एक नेशनल कंसेंसस है, जो प्रेम्बल में है, उसको बीजेपी मानती नहीं है। तो बीजेपी, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वो हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, पर वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है। बीजेपी गोलवलकर सावरकर के विचारधारा को मानने वाले हिंदुओं की पार्टी है, और कुछ मुसलमानों की भी पार्टी है जो गोलवलकर सावरकर की विचारधारा को मानते हैं। उसका हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी जो बात कहती है वो हिंदुओं के किसी भी सिविलाइजेशनल टेक्स्ट में लिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो वेद से लेके पुराण से लेकर के किसी दर्शन में एक भी बात लिखा नहीं है। इंडिया का कोई जो रिलीजियस ट्रेडिशन है उसमें है नहीं। तो ये हिंदूवाद नहीं है, ये सावरकर गोलवलकरवाद है, जो इस 150-200 साल में नया पॉलिटिक्स कैसे होगा, देश को कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में डिफरेंसेस के बावजूद एक कंसेंसस, उस कंसेंसस को मानते नहीं है। चूंकि वो उस कंसेंसस को नहीं मानते हैं और वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन जीते ये हारे, अभी आने वाले समय में, आने वाले 15, 20, 25 साल वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी रहना है उसको। तो उस नेशनल कंसेंसस को रिस्टोर करना, बीजेपी को केवल इलेक्शन में हराना नहीं, इसको पॉलिटिक्स में मार्जिनलाइज करना डेमोक्रेटिकली, एंड ब्रिंग दैट इनटू द
सेंट्रल पॉइंट, हाँ, जो कंसेंसस बिल्ड हुआ और जिस कंसेंसस का ऊपर अब हम लोग हाँ, जिस देश बना है, तो जो उस कंसेंसस को मानता नहीं है वो एक पॉलिटिक्स में मेजर प्लेयर नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो चीजें और करना होगा। इलेक्शन में तो हराना होगा और बार बार हराना होगा, पर दो चीज और करना पड़ेगा। एक तो जो लोगों के रियल इश्यूज है उसको पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में ले आना पड़ेगा। तो बेरोजगारी का सवाल है, केवल बेरोजगारी का सवाल नहीं है, एक अच्छी जिंदगी का सवाल है। एक हिंदुस्तानी को वैसी ही अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए जैसे दुनिया में कहीं भी किसी को भी मिलती है। आज के ज़माने में कोई रीज़न नहीं है कि कोई बैकलॉग इतना बड़ा हो। जो आज टेक्नोलॉजी की ताकत है, जो आज डेमोक्रेसी की ताकत है, नॉलेज की ताकत है, इसमें प्लान डेवलपमेंट से 15-20 साल में कोई भी देश, केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी देश सब्सटेंशियली वही ज़िंदगी हासिल कर सकता है जो दुनिया में कहीं भी किसी को भी मिलता है। तो बेरोज़गारी तो दूर होना चाहिए, तकलीफ़ दूर होना चाहिए, पर आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान को एक जो विकसित भारत की बात, कागजी बात कहते हैं, एक स्लोगन की उसको मतलब अचीव करना है, उसको रियल सेंस में अचीव करना, एक रियल सेंस में अचीव करना है। तो लोगों का सवाल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में आना चाहिए। ये एक दूसरा सवाल है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों का सवाल इलेक्शन से सेंटर स्टेज में नहीं आता है। लोगों के सवाल पर स्ट्रीट में स्ट्रगल जब तक नहीं होगा, कैंपेन जब तक नहीं होगा, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और तीसरा आपने सोचा है कि ये जो संस्कृति है, जो हमारी कॉमन संस्कृति है, साझी संस्कृति है, इंसान कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए और वो कैसे बनाया जाता है, इसकी जो हमारी 200 साल की परंपरा है और हर धर्म में जो हजारों साल की परंपरा है, उसको मिला करके एक सांस्कृतिक आंदोलन देश में शुरू करना है, जिससे कि जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, एक नेचुरली हिंदुस्तान का आदमी कैसे सोचेगा, तो वो दोस्ती के बारे में सोचेगा, समझदारी के बारे में सोचेगा। तो मतलब जो कल्चरल एंड नेशनलिज्म मतलब इंडिया का जो नेशनलिज्म जो होगा उसका साथ कल्चर भी जुड़ा रहेगा। ये दोनों चीज जुड़ा हुआ भी। नेशनलिज्म का बुनियाद भी था। नेशनलिज्म का कल्चर, इंडियन कल्चर को आज के समय के लिए उसमें से क्या हमको लेना है और क्या नहीं लेना है, ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हुए नए हिंदुस्तान को हमको बनाना है। तो तीन चीजें, चुनाव है, सड़क है और संस्कृति है। चुनाव, सड़क, संस्कृति। संसद, सड़क, संस्कृति। संस्कृत, सड़क, संस्कृति। मतलब if I have to speak in Assamese, সংসদ, ৰাষ্ট্ৰ, ৰাজপথ আৰু সংস্কৃতি, সংস্কৃতি, এই তিনিটাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। We have to emphasize on these all three together, and this should be our focus. And जो मतलब भारत जोड़ो अभियान का फोकस वही है। इसलिए जनगण मन अभियान हमने चलाया है, जो परमानेंटली चलता रहेगा, जो हर इलाके के नायकों को, सांस्कृतिक हीरोज़ को, पॉलिटिकल हीरोज़ को, इनको हम सेलिब्रेट करेंगे और लोगों को उसके बारे में बताएंगे। लोग उसके बारे में जानते हैं। लोग का चर्चा होगा, सेलिब्रेशन। No, actually it is a short, brief interview, but in this brief interview, you have spelled out things so clearly and so candidly. I'm really grateful to you for sparing time. You were in a trip, but then you could spare a little time for us, and I'm extremely grateful to you for this, and wish you all the best. Thank you very much for participating in this program. Thank you. Thank you.